ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਊ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਹੀ ਵਿਕਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ NDTV ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਤੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਧਨਾਡਾ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਐਂਕਰ ਪਦਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਦਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ NDTV ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crimes. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਂਕਰ ਪਦਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਠੋਕਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖਬਰ, ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, खबर का दूजा पासा दिखाने वाली डिबेट भी ना देखने को मिले। मोदी मीडिया को जगाना होगा, कोई हिंसा करके नहीं, कोई बदतमीजी करके नहीं, बल्कि अपने मुद्दे उन तक पहुंचाइए और देखिए कि क्या आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा वो अपने टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं। आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या उस पर वो अपने टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं। इसको देखिए, क्योंकि पिछले दिनों एक मामला आया एप्स्टीन फाइल का। ऐसा दरिंदा जो बच्चियों के साथ बलात्कार न सिर्फ करने में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को शामिल करके महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करने के मामले में उसका नाम सामने आया, जिसमें हरदीप पुरी जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उनका भी नाम सामने आया, मोदी जी का भी नाम सामने आया कि उसने कोई मीटिंग इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी फिक्स कराई थी, अनिल अंबानी का भी नाम सामने आया। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन भारत में गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर दी है। आपने देखा होगा जो अडानी का टीवी चैनल है NDTV, उसकी एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार पद्मजा जोशी जी, किस बेशर्मी के साथ वो एप्स्टीन का बचाव कर रही है। वो कह रही हैं एप्स्टीन भले ही बच्चियों का शोषण करता था, भले ही बलात्कारी था, भले ही गुनहगार था, भले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां इंसानों के मांस खाए जाते थे, लेकिन बावजूद इसके वो पावर ब्रोकर था। ये तर्क है पद्मजा जोशी का। कल कोई लोग कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम भले ही वो मुंबई बम कांड का दोषी है, देशद्रोही है, लेकिन वो लोगों की मदद भी करता है। भले ही ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, खूंखार आतंकवादी था,
लेकिन वो तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। ऐसे तर्क देंगे। इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की है। इसलिए गोदी मीडिया से आपको सवाल पूछना पड़ेगा अपने मुद्दों पर। क्या रोजगार के मुद्दे पर गोदी मीडिया कोई बहस करते हुए आपको दिखती है? क्या महंगाई के मुद्दे पर कोई सरकार से सवाल पूछते हुए दिखती है? क्या बजट जो हिंदुस्तान का 2% शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2% का बजट आया, इस पर क्या उनका सवाल सरकार से नहीं बनता कि आप इस देश को अशिक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली में रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं इस देश को? कभी आपने देखा ऐसे सवालों पे बहस करते हुए? क्या बहस होती है? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़े फसाद पैदा करो। एक टीवी चैनल पे अभी मैंने देखा कि उस पे जानकारी दी जा रही थी कि कौन मुगल शासक समलैंगिक था नहीं था। बाबर के बारे में प्रमाण दिया जा रहा था कि वो समलैंगिक था। ठीक है, आप कार्यक्रम दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, इतनी गंभीर गंभीर जानकारियां आप देश को दे रही हैं। लेकिन आप एप्स्टीन जैसे खूंखार दरिंदे का, राक्षस का बचाव कैसे कर सकते हैं जो पद्मजा जोशी ने किया? तो आज से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोई नफरत की बात नहीं बोलनी है, कोई उग्रता की बात नहीं बोलनी है, बल्कि अपने मुद्दे गोदी मीडिया को पहुंचाओ और इन पे नजर रखो कि ये आपके मुद्दे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम घड़ीसदियां कुछ आख्या है। आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है, जेफरी एप्स्टीन। कोई उसे दरिंदा बुला रहा है, कोई उसे हैवान बुला रहा है। वो ऐसा कुकर्मी है जिसके साथ कोई शरीफ आदमी अपना नाम जुड़ा हुआ, अपना नाम उसके बगल में देखना नहीं कबूल कर सकता है। असल में तो जेफरी एप्स्टीन 21वीं सदी का सबसे बड़ा दरिंदा था। वो पहले अमेरिका में एक स्कूल टीचर था, मगर बाद में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों का फाइनेंस मैनेजर बन गया। फिर उसने कुकर्म और हैवानियत का वो धंधा बनाया जिससे इंसान की रूह कांप जाए। जेफरी एप्स्टीन दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को अपने आलीशान प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स में बुलाकर 10 से 17 साल की लड़कियों के साथ जमकर अय्याशियां कराता था। मेहमानों को ले आने ले जाने के लिए उसके पास प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। जेफरी स्कूल में पढ़ने वाली गरीब परिवार की उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को टारगेट करता था जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। इन बच्चियों से वो कहता था कि हम तुमसे मसाज करवाएंगे, बदले में तुमको ढेर सारा पैसा देंगे। इसकी बातों में आकर जब ये छोटी बच्चियां इसके ठिकाने पर आती थी तो ये इन बच्चियों को अपने दरिंदे मेहमानों के हवाले कर देता था। इन बच्चियों को अपने साथ पढ़ने वाली और भी लड़कियों को आइलैंड लाने के लिए कहा जाता था। पैसे के अभाव के चलते कुछ बच्चियां अपने साथ पढ़ने वाली दूसरी बच्चियों को भी ले आती थी, जिसके अलग से पैसे दिए जाते थे। ये सब करा रहा था। ये गुमराह करके लाई गई मासूम बच्चियां मेहमान के सामने हाथ जोड़कर चीखती रहती थी, वो चिल्लाती थी, मगर एप्स्टीन और उसके मेहमान इन बच्चियों के जिस्म को नोचते थे। कई बच्चियों के शरीर से खून बहता था, मगर एप्स्टीन उन्हें छोड़ने की जगह उनसे रूह कांप देने वाली हैवानियत करता था। कहा तो यह भी जाता है कि एप्स्टीन के कुछ मेहमान बच्चियों के मांस तक को खा गए थे। यह भी खबर है कि हैवानियत के दौरान अगर किसी बच्ची की मौत हो जाती थी तो उसके लाश को उसी आइलैंड पर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर जला दिया जाता था, ताकि ना बच्चियों की बॉडी के कोई सबूत मिले, ना ही दरिंदगी का कोई प्रमाण सामने आए। 2005 में अमेरिका में एप्स्टीन के खिलाफ एक मुकदमा शुरू हुआ जो 2008 तक चला, जिसमें इसने छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी को कबूला। इसे जेल भी हुई, मगर बड़े बड़े लोगों की कृपा से कुछ ही महीनों बाद यह जेल से रिहा हो गया और वापस आकर इसने फिर से हैवानियत और दरिंदगी का व्यापार दोबारा से किया। फिर 2018 में मायामी हेराल्ड ने इसके खिलाफ एक रिपोर्ट छापी, द परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट में बताया कि 2008 की डील में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला था, जिसके बाद यह मामला फिर से खुला। जुलाई 2019 को एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर से गिरफ्तार किया गया। उस पर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे। जांच में उसके घर में सैकड़ों लड़कियों की, छोटी छोटी बच्चियों की न्यूड तस्वीरें और नामचीन लोगों से संबंधित तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले। अदालत में मुकदमा चल ही रहा था, तभी खबर आई कि एप्स्टीन ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली है।
लोगों का तो मानना है कि असल में अपना नाम और काली करतूतें सामने आने के डर से एप्स्टीन को निपटा दिया गया है। अगर जेफरी एप्स्टीन मरा ना होता तो अब तक ना जाने कितने शरीफों की घिनौनी असलियत दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन एक सच यह भी है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तो सिर्फ 30 लाख जो ईमेल सार्वजनिक की हैं, उसी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। और शर्म की बात यह है कि तमाम नामों में मोदी सरकार के मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री का एप्स्टीन जैसे आदमी से संबंध होना और उससे सलाह लेने के लिए नाम सामने आया है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए कोई और बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि एप्स्टीन को हैवान क्यों कहा जा रहा है, मैं आशा करती हूं आज आप समझ गए होंगे कि इससे बड़ा दरिंदा दुनिया में शायद ही दूसरा कोई रहा हो। 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं?